Good morning students, welcome to our YouTube channel Gnan Manjari Modern School. So today in standard 6 we start our second chapter number 2, Windows files and folders. So in this chapter, what is the files and folders of the computer and in the Windows. So first topic is file. A collection of information that is stored under one name is called a file. A collection of information that is stored under one name is called a file. This information could be text, images, music और वीडियोस. जो इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन है, जो एक फ़ाइल के अंदर स्टोर होता है, उस इंफॉर्मेशन को, वो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट, इमेजेस या फिर म्यूज़िक और वीडियोस कुछ भी हो सकता है, उसको हम फाइल बोलेंगे. वो फाइल म्यूज़िक हो सकता है, टेक्स्ट, इमेजेस और ऑडियो वीडियो कुछ भी हो सकता है. ऑन अ कंप्यूटर फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आइकॉन्स. फाइल्स है वो आइकॉन्स के ज़रिए उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. सो इट इज़ ईजी टू रिकॉग्नाइज व्हाट टाइप ऑफ फाइल इट्स बाय लुकिंग एट इट्स आइकॉन. हियर आर सम ऑफ द कॉमन फाइल आइकॉन्स. यहाँ पे कॉमन फाइल के आइकॉन्स हैं. रिप्रेजेंट अ टेक्स्ट फाइल. यहाँ पे जो आइकॉन है लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, ये वाला जो आइकॉन है वो टेक्स्ट फाइल को रिप्रेजेंट करता है. ये आइकॉन है वो वर्ड पैड को रिप्रेजेंट करता है, वर्ड पैड फाइल को. फिर ये वाला जो आइकॉन है इट रिप्रेजेंट्स अ वर्ड फाइल. और ये वाला जो आइकॉन है वो वर्ड पैड फाइल और ये वाला जो है वो वर्ड फाइल. दिस image is an example of a picture image or picture file. This image is example of audio or music file and this example is video file. So students, ये थी हमारी अलग अलग टाइप की जो फाइल्स है जो रिप्रेजेंट उसको आइकॉन्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं. वो कैसी दिखती है वो ये फाइल में दिखाया गया है. नेक्स्ट इज फोल्डर. व्हाट इज अ फोल्डर? अ ग्रुप ऑफ फाइल्स ऑफ अ सिमिलर टाइप इज कॉल्ड अ फोल्डर. फाइल्स का जो ग्रुप होता है जो सिमिलर टाइप की होती है, वो ग्रुप बन के जो एक बनता है उसको हम फोल्डर बोलते हैं. Here are two types of folders that you see on your computer. Here are the picture of folders. See, this folder represents an empty folder. It is usually named new folder until you give it a name. Next is represents a folder that contains files or other subfolders. A folder can also store other folders. A folder within a folder is called a subfolder. अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो सिंबल है वो एम्प्टी फोल्डर का है. यहाँ ये वाला जो है वो है एम्प्टी फोल्डर, इसके अंदर कुछ नहीं है. लेकिन यहाँ पे जो फोल्डर है उसको आप देख सकते हैं, उसके अंदर भी आपको कुछ फाइल्स दिख रही है. तो ये है हमारे सब फोल्डर. फोल्डर विद इन अ फोल्डर और फोल्डर कंटेन्स फाइल और अदर फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर. A folder can also store other folders. A folder within a folder is called subfolder. You can create any number of subfolders and even a subfolder can have any number of files and other subfolders. आप जितने चाहे उतने सबफोल्डर, जितनी चाहे उतनी फाइल्स कंप्यूटर में बना सकते हैं. Next is libraries.
In Windows, libraries in a feature that helps you to store and organize your files and folders. By default, there are 4 libraries in Windows. First one is a document library, then pictures library, music library and videos library. There are 4 types of libraries. What is a library? Library is a feature that helps you to store and organize your files and folders. हमारे जो फाइल्स और फोल्डर्स है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो फीचर कंप्यूटर में दिया गया है उसको हम लाइब्रेरीज बोलेंगे. बाय डिफॉल्ट देयर आर 4 लाइब्रेरीज इन विंडोज. डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, पिक्चर लाइब्रेरी, म्यूजिक लाइब्रेरी और वीडियो लाइब्रेरी. फर्स्ट वन इज डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी. It is used to store and organize text files, WordPad documents, Word documents, spreadsheets, presentations, etc. Document library, it is used to store or organize text files, WordPad document, Word document, spreadsheet, presentations, etc. By default, all files that you save, move or copy are stored in My Documents folders in Document Library. Second one is Picture Library. Pictures Library, it is used to store and organize pictures such as photographs or images from your camera, scanner और image. पिक्चर्स लाइब्रेरी है उसमें आप अपने जो भी पिक्चर और इमेज और फोटोग्राफ्स है उसको आप उसके अंदर रख सकते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट ऑल पिक्चर्स दैट यू सेव, मूव और कॉपी आर स्टोर्ड इन माय पिक्चर्स फोल्डर इन पिक्चर्स लाइब्रेरी. हम जो कुछ भी करते हैं, पिक्चर्स को भी स्टोर करते हैं, उसको मूव करते हैं, कॉपी करते हैं, वो सारे जो है वो पिक्चर्स फोल्डर में, पिक्चर्स लाइब्रेरी के अंदर पिक्चर्स फोल्डर में सेव होते हैं. नेक्स्ट इज अ म्यूज़िक लाइब्रेरी. इट इज़ यूज्ड टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज म्यूजिक such as songs that you pick from an audio CD or that you download from the internet. By default, all music files that you save, move or copy are stored in My Music folder in Music Library. Next, fourth one, Videos Library. It is used to store and organize videos such as clips from your digital camera or camcorder और वीडियो फाइल्स दैट यू डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट. वीडियोस लाइब्रेरी है उसमें जो वीडियोस है, कुछ भी वीडियो की क्लिप है जो डिजिटल कैमरा से या कैमकॉर्डर से आपने उसको लिया है, और वीडियो फाइल है जो डाउनलोड की है आपने इंटरनेट से, वो वीडियोस लाइब्रेरी में बाय डिफ़ॉल्ट सेव होती है. बाय डिफ़ॉल्ट ऑल वीडियोस फाइल्स दैट यू सेव, मूव और कॉपी आर स्टोर्ड इन माय वीडियोस फोल्डर इन वीडियोस लाइब्रेरी. नेक्स्ट टॉपिक इज ओपन लाइब्रेरीज. हमारी जो लाइब्रेरीज है उसको कैसे ओपन करते हैं और किसको हम लाइब्रेरीज बोलते हैं ये हम इस टॉपिक में देखेंगे. सो इन ओपन लाइब्रेरीज क्लिक ऑन अ स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार, यू विल सी द स्टार्ट मेनू. आपको पता ही है स्टार्ट बटन क्या है. उसमें आप ऑल प्रोग्राम जो टास्क बार है, स्टार्ट बटन है टास्क बार में, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यू विल सी अ स्टार्ट मेनू. आप हमारा जो स्टार्ट मेनू है इसको देखेंगे. ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा, यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, ये है हमारा स्टार्ट मेनू. जो स्टार्ट मेनू है उसमें यहाँ पे जो राइट साइड में है ये है हमारी, ये जो है वो है लाइब्रेरीज. यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये है सारी लाइब्रेरीज. उसमें है डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक, गेम्स, कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल, डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम्स, हेल्प एंड सपोर्ट, ऑल आर द लाइब्रेरीज.
Second, on the right pane of the start menu, you can see the 3 libraries, documents, pictures and music. On the right pane of the start menu, जो स्टार्ट मेनू के राइट साइड है वो हमारी लाइब्रेरीज है. क्लिक ऑन अ डॉक्यूमेंट्स, यू विल सी द डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी विंडो. हम जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे है लाइब्रेरीज में उस पर क्लिक करेंगे तो हम डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी जो हमारी है उसको ओपन कर सकते हैं. तो ये है सारी की सारी लाइब्रेरीज. हम कैसे लाइब्रेरीज को ओपन करेंगे? स्टार्ट मेनू है, स्टार्ट बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो स्टार्ट मेनू ओपन होगा. उसमें ही राइट साइड पे हमारी जो लाइब्रेरीज है वो होगी. सो स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 16 यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारी डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी. जो लाइब्रेरीज में हमने क्लिक करके ओपन की है तो वो कैसी दिखेगी ये आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है. उसमें जो फर्स्ट है यहाँ ये है हमारा मेनू बार. आप यहाँ पे देख सकते हैं. यहाँ पे ये जो फाइल, एडिट, व्यू, टूल, हेल्प जो लिखा है उसको हम बोलेंगे मेनू बार. देन नेक्स्ट इज एड्रेस बार, यानी कि हमारा जो एड्रेस जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम कौन से जगह पे है. फॉर एग्जांपल हमने पहले लाइब्रेरी ओपन की थी. लाइब्रेरी में हमने डॉक्यूमेंट्स को ओपन किया था तो हमारा एड्रेस होगा लाइब्रेरीज डॉक्यूमेंट्स. आप यहाँ पे देख सकते हैं. आप यहाँ पे ऐसे जूम करते देख सकते हैं. यहाँ पे है लाइब्रेरीज और डॉक्यूमेंट्स. इट इज़ अ एड्रेस बार. देन नेक्स्ट इज अ टूल बार. यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज, शेयर विथ, ये सारा जो है वो है टूल बार. ये वाला जो लाइन है वो है हमारा टूल बार. देन नेक्स्ट इज लाइब्रेरी पेन. यहाँ पे ये वाला जो है ये एरिया जो है वो है लाइब्रेरी पेन. ये डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी यहाँ पे जो लिखा है वो एरिया है वो है हमारा लाइब्रेरी पेन. The next it is a करंट लाइब्रेरी. यहाँ पे जो है वो है यहाँ पे करंट लाइब्रेरी. करंट लाइब्रेरी में है डॉक्यूमेंट. जहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है हम अभी कहाँ पे है तो हम अभी डॉक्यूमेंट में है कंप्यूटर में. तो ये है करंट लाइब्रेरी. देन फोल्डर्स. यहाँ पे जो है ये सारे के सारे है वो है फोल्डर्स. ये सारे फोल्डर्स हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये जो आइकॉन है, सिंबल है, वो फोल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है. और यहाँ पे नीचे जो है ये सारी है, ये आइकॉन्स वाली जो है वो सारी हमारी फाइल्स है. यहाँ पे जो लिस्ट पूरा यहाँ पे दिखाया जाता है ये एरिया जिसमें उसको फाइल लिस्ट बोलते हैं. और यहाँ पे है डिटेल पेन. ये है हमारा डिटेल पेन. एंड देन दैट इज़ अ नेविगेशन पेन, यानी कि नेविगेशन पेन है उसमें है लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंट, म्यूज़िक, यानी कि आप डॉक्यूमेंट्स में से म्यूज़िक में से पिक्चर्स में डायरेक्ट यहाँ से आप मूव कर सकते हैं. तो ये थी हमारी लाइब्रेरी विंडो. अभी हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे कि लाइब्रेरी विंडोज में एड्रेस बार, मेनू बार वो उसको क्या कहा जाए. First one is a address bar. It shows the address of the library you have opened. Use the address bar to navigate to a different folder or library or to go back to a previous one. यानी कि जो एड्रेस बार है वो लाइब्रेरी आप जो भी लाइब्रेरी आपने ओपन की हुई है उसका पूरा एड्रेस है वो आपको दिखाता है. यूज़ द एड्रेस बार टू नेविगेट और टू मूव बिटवीन अ डिफरेंट फोल्डर और लाइब्रेरी और टू गो बैक टू अ प्रीवियस वन. In this picture, the address bar shows libraries documents, which means that document is stored in libraries. आप जहाँ पे है डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में वो आपको एड्रेस बार में दिखाता है लाइब्रेरीज
एरो डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आप लाइब्रेरीज में जो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी है उसमें डॉक्यूमेंट्स में आप है। नेक्स्ट इज अ मेनू बार. It contains the different menu like file, edit, view, tool and help. Next is toolbar. It is used to perform common tasks such as changing the appearance of files and folders, copying file to a CD, etc. The buttons on the toolbar will change according to the library that you have opened. In this picture, you can see tools that are useful in documents library. If you open the pictures or music or videos library, the buttons on the toolbar will be different. Fourth one, library pen. It shows the name of the library that you are in. The library pen is seen only when you are in a library. जो लाइब्रेरी पेन है वो तभी आपको दिखेगा जब आप लाइब्रेरी के अंदर एंटर करोगे. इन दिस पिक्चर यू कैन सी द डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी. आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है वो है हमारी डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी. नेक्स्ट वन इज फाइल लिस्ट. It shows the list of files and folders in the current folder or library. जो फाइल लिस्ट है वो हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें हम फाइल और फोल्डर्स में जहाँ पे करंट फोल्डर में जहाँ पे हम हैं वो हमको दिखाएगा. यू कैन ओपन अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम दिस लिस्ट. आप उस लिस्ट से फाइल और फोल्डर को ओपन कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज अ नेविगेशन पेन. It is used to navigate between files and folders in your computer. जो नेविगेशन पेन है उसमें आप फाइल और फोल्डर से आपके कंप्यूटर में उसके बीच में उसको आप नेविगेट कर सकते हैं. यू कैन सी एंड ओपन वेरियस फोल्डर्स एंड फाइल्स फ्रॉम द नेविगेशन पेन. आप नेविगेशन पेन में से वेरियस फाइल्स और फोल्डर्स को देख सकते हैं. इन दिस पिक्चर यू कैन सी डॉक्यूमेंट्स हाईलाइटेड बिकॉज इट इज़ द वन दैट वी हैव ओपन करेक्टली. आप उस पिक्चर में देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स है वो हाईलाइट किया हुआ है बिकॉज दैट वी हैव ओपन करंटली, यानी कि हमने करंटली है उसको ओपन किया हुआ है इसलिए. नेक्स्ट इज अ डिटेल पेन. इट शोज द details of the selected file or folder in the file list. If you place the mouse pointer over the file or folder, the details pane will show the name of the author, the date you last changed the file or etc. जो डिटेल्स पेन है वो जो हम जिस फोल्डर पे है उसकी डिटेल्स हमको दिखाता है. अगर हम अनदर जो हमारा फोल्डर और फाइल है उसके ऊपर हम जो माउस है उसका कर्सर ले जाएंगे तो वहाँ पे वो उसको ऑथर है उसका नाम, डेट और लास्ट में आपने कहाँ पे चेंज किया है वो सब आपको दिखाता है. इन दिस पिक्चर द डिटेल पेन शोज 18 आइटम्स द नंबर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स इन डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी. डिटेल पेन है उसमें 18 आइटम्स है, नंबर्स ऑफ फाइल और फोल्डर है डॉक्यूमेंट लाइब्रेरीज में. बिफोर वी क्रिएट फोल्डर एंड फाइल, लुक एट दिस डायग्राम टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वी विल बी डूइंग. हमारा जो हम जो कर रहे हैं फाइल और फोल्डर वो क्रिएट करने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो फाइल और फोल्डर है वो कैसे वर्क करता है और कैसे दिखता है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट यहाँ पे है डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी. ये है हमारी डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी. उसमें हमने फॉर एग्जांपल एक स्पॉट्स नाम का एक अभी हमने फोल्डर बनाया. ये है हमारा फोल्डर स्पॉट्स नाम का. ये है हमारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी. देन हमने स्पॉट्स नाम का एक मेन फोल्डर है उसको बनाया है. ठीक है. अभी हम स्पॉट्स है उसमें तो इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स दोनों होती है तो हम इंडोर गेम और आउटडोर गेम नाम का दो सब फोल्डर बनाते हैं. फर्स्ट इज अ इंडोर गेम्स एंड सेकेंड इज अ आउटडोर गेम्स.
इन इंडोर गेम्स हम 2 फाइल्स बनाते हैं। इंडोर गेम्स में हम कौन कौन सी फाइल गेम्स रखेंगे? तो इंडोर गेम्स में हमने रखी है चेस और कैरम, ये दोनों हमारी फाइल है। और आउटडोर गेम्स है उसके अंदर है फुटबॉल और हॉकी, ये दोनों हमने बनाई है हमारी फाइल्स। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट हमारा जो है वो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी है, उसमें हमने स्पोर्ट्स नाम का मेन फोल्डर बनाया है। स्पोर्ट्स है तो उसमें इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो हमने 2 सब फोल्डर बनाए हैं, इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स। और उस इंडोर गेम में हम कौन कौन सी गेम रखने वाले हैं? तो इंडोर गेम में हमने रखा है चेस और कैरम, और आउटडोर गेम्स में हमने रखा है फुटबॉल और हॉकी। तो हम चेस, कैरम और फुटबॉल और हॉकी, ये 2 नाम के हम फाइल्स रखेंगे। This means that we will create 2 files, chess and carom in indoor games folder and 2 files, football and hockey in outdoor games folder. And both the subfolders, indoor games and outdoor games, are created and stored in the main folder spots. जो इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स फाइल्स है जो हमने क्रिएट की है वो मेन फोल्डर है स्पॉट्स, उसमें सेव होती है। और चेस और कैरम है वो इंडोर गेम्स में, और फुटबॉल और हॉकी है वो आउटडोर गेम्स के फोल्डर में सेव होती है। तो ऐसे हमारा मेन फोल्डर, सब फोल्डर और फाइल्स ऐसे हम बनाते हैं। तो ये थी हमारी लाइब्रेरी विंडो। और फाइल फोल्डर हम कैसे बनाएंगे, वो जो आगे का हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक वर्किंग विथ फाइल्स एंड फोल्डर्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।